Hey guys, welcome to Dial Tutorials. This is Krisha और आज हम पढ़ने जाएंगे चैप्टर 6 और लेसन 6 ऑफ योर फ्रेंच 11th। हमने 5 तक शूट कर लिया है, 5 तक पोस्ट भी हो चुका है एंड किसी का तो मैसेज आया था कि लेसन 6 तक पढ़ा दो क्योंकि हमको बिलान 3 तक है एग्जाम्स। सो अ स्टूडेंट आल्सो डीएमड मी ऑन माय इंस्टाग्राम। आई एम नॉट प्लानिंग टू स्टे एक्टिव ऐसा पोस्ट वाइज वहाँ पे। आई एम प्लानिंग टू स्टे एक्टिव ओनली डीएम्स में। Like if there is a doubt, so Instagram you can send pictures and everything and proper communication होता है text वाला and the doubt is solved ज़्यादा अच्छे से। और YouTube में वो possible नहीं है in comment section, इसलिए मैंने Instagram पेज खोला है, लेकिन मैं वहाँ पे पोस्ट वगैरह कुछ अभी तक तो एटलीस्ट नहीं सोच रही हूँ करने का। But I'll stay active in DMs. You DM me your doubts, your comments, whatever that you want to say, you DM me, I'll reply. Okay. So yes, the Instagram page is made. The username is @RyalTutorials. No extra letters, थोड़ा S ज़्यादा थोड़ा E ज़्यादा कुछ नहीं है। No full stop, no underscores, nothing, कुछ नहीं है, बस Ryal Tutorials, @Ryal Tutorials है, okay? So yeah, that's it. Let's start the lesson. Like every chapter, यहाँ पे भी सबसे पहले communication ही है. So let's come to the communication part. Don't worry, to those who do not have a book right now, I'll put a picture of the passage that I'm reading somewhere here while editing the video, okay? So that you stay in the loop. So ये communication में बताया जा रहा है कि what would you do if you want to ask someone the directions, okay? So first you can see A, excusez-moi, for Alagare, s'il vous plaît. Alagare means station. Just like we have railway station, the station where there are trains, train station is Alagare. Okay. So she's like, excuse me, can you please tell me how to go to the train station, please? Okay. S'il vous plaît, you know it's please. Il n'y a pas de gare près d'IC, mais il y a une station de metro. There is not a nearby train station from here. DIC means from here. Okay. But there is a metro station. मतलब nearby. यहाँ पे train station कहीं नहीं है, but there is a metro station. So she's like the girl who asked, set loin. She's asking कि यहाँ से कितना दूर है, okay? So she's asking how far is it? And the lady who is helping her is like a 2-minute DIC. It's just 2 minutes from here, okay? And then जो हमारा होता है Mercy book up, thanks a lot, and she's like je vous ampra, welcome, okay? अभी हम आते हैं दूसरे पैसेज पे. Now this girl asks this lady, est-ce qu'il y a une boulangerie près d'ici, s'il vous plaît? She is asking, is there any nearby bakery here? So the lady replies, oui, oui, allez tout droit, regardez cette là. Yes, yes, go straight ahead. Look, there is the bakery that she talked about, okay? And she's like, ah, oui, merci bien. Oh, yes, thanks a lot. And the second one says Darian, which means welcome, okay? Abhi, let's come to the C, third passage. Je n'ai pas d'argent, je cherche un distributor. I'm so bad with pronunciations. Okay, forget it. So we पूछ रहा है that I do not have any money. Please can tell me where's the distributor means ATM. You can see there's a star there. Star में नीचे लिखा हुआ है DAB means distributor automatic debits, which means ATM. So he's like, I do not have any cash on me right now or any money on me right now. I am looking for an ATM. I'm searching an ATM. Okay. तो वो दूसरा बोलता है traverse la rue, passes par la poste. Said just about Dala Rue. Okay, so वो बोलता है कि cross the street, go through the post office, there is an ATM just at the end of the street. ठीक है, वो ऐसे बोलता है, पूरा उसको मार्गदर्शन करता है. तो वही सेम वो जो बोलता है कि मर्सी मौसी और थैंक यू सर, और वो बोलता है पादे को आप, which means welcome. ठीक है, so yeah, this is how you ask for directions politely. Now comes pronoun tonic. आपको देखा pronoun tonic तो हमने किया हुआ है, तो ये दोबारा क्यों आ रहा है? pronoun tonic आ गया आपको, लेकिन अभी इसके ज्यादा यूजेस आ रहे हैं. ठीक है, लाइक आपको 3 यूजेस थे इफ यू रिमेम्बर. पहले तो प्रोनाउन टोनिक हम याद कर लेते हैं. ओके, मुआ, टुआ, लुई, एल, नोज, वोज, ईयूएक्स और एल्स. याद आया? ओके, उसके 3 यूजेस थे. ठीक है, 3 यूजेस कौन से थे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. पहला तो था एम्फोसिस, मैंने आपको बोला था अगर मुझे एम्फोसिस डालना है, स्ट्रेस डालना है, तो मैं प्रोनाउन टोनिक यूज करती हूँ. ठीक है, दूसरा था आफ्टर सेट एंड सेस ऑन. ओके, थर्ड था ऐसा हाँ, क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करना हो तो, अगर कोई क्वेश्चन है उसके बाद रिस्पॉन्ड करना हो तो. याद है हमारा एग्जांपल था हु इज द लीडर ऑफ द ग्रुप या टीम, ऐसा कुछ, तो आंसर था लुई. ठीक है, ऐसे ही हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, अगर आपके दादाजी है तो आप लुई बोलेंगे, दादी जी है तो एल बोलेंगे. ठीक है, तो ये था प्रोनाउन टोनिक के 3 यूजेस जो हमारे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े, लेकिन प्रोनाउन टोनिक के और भी यूजेस है. ठीक है, और भी यूजेस हैं, सो विल स्टार्ट विद दैट. ओके, मोर यूजेस ऑफ प्रोनाउन टोनिक आर, फर्स्ट है आफ्टर प्रेपोजिशंस.
प्रीपोजिशन के बाद अगर हम बात कर रहे हैं किसी इंसान की तो हम यूज करते हैं प्रोनाउन टॉनिक, लाइक श अराइवे आवेक पॉल। ओके, आवेक का मतलब होता है विथ। अगर आप भूल गए हो तो मैं यहाँ पे विथ लिख देती हूँ, श अराइवे आवेक पॉल। तो यहाँ पे पॉल को हमने रिप्लेस किया है लुई के साथ, ठीक है। ज अराइवे आवेक सेम रहेगा, इसलिए मैंने ऐसे किया है। इसका मतलब इफ यू डोंट नो इस कि ये एग्जैक्टली यहाँ तक सेम है। आवेक पॉल के बदले आवेक लुई आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे आवेक लुई ऐसे क्यों आ रहा है? अरे हम इंग्लिश में भी तो बोलते हैं कि आई एम कुकिंग विथ माई मॉम, आई एम कुकिंग विथ हर। तो आप अभी थोड़ी बोलोगे कि वहां पे हर क्यों यूज किया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्यों यूज किया जा रहा है। दैट इज प्रोनाउन टॉनिक। वैसे ही ये भी प्रोनाउन टॉनिक ही है, ठीक है। ज अराइवे आवेक पॉल, ज अराइवे आवेक लुई, यहाँ तक सबसे लुई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन टॉनिक यूज किया जाता है। और एक और यूज है उसका इन कंपैरिजन सेंटेंसेस। कंपैरिजन सेंटेंसेस में ना क वर्ड आता है, ठीक है। ये जो क वर्ड है इट्स यूज फॉर कंपैरिजन। जैसे कि इंग्लिश में हमारा देन आता है, ठीक है। आई एम स्मार्टर देन हिम, आई एम टॉलर देन हिम, तो उसमें जो देन आता है कंपैरिजन के लिए वही, ठीक है। एल एस प्लो ग्रांडे क सॉन फ्रेरे, एल एस प्लो ग्रांडे सॉन फ्रेरे, ये जो क है वो तो कंपैरिजन के लिए है। प्लो ग्रांडे का मतलब क्या होता है? टॉलर, ओके। प्लस मतलब मोर हुआ, ग्रैंड मतलब टॉल हुआ, मोर टॉल मतलब टॉलर, ठीक है। शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉन फ्रेरे हर ब्रदर की बात करें तो हमने सॉन फ्रेरे पूरा उठा लिया, वहां पे लुई लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे स्वार होता यानी कि उसकी बहन, शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, तो हम वहां पे एल लिख देते, ठीक है। क्योंकि उसका भाई है इसलिए हम लुई लिख रहे हैं, ठीक है। और ये तो पूरा सेम रहेगा, एल एस प्लो ग्रांडे क लुई ऐसे आएगा, ठीक है। सो ये था प्रोनाउन टॉनिक के और यूजेस। सो लेट्स कम टू इम्पेरेटिव्स। इम्पेरेटिव्स लाइक द नेम सजेस्ट इज द इम्पेरेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इम्पेरेटिव आपके इंग्लिश में भी था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, असर्टिव नहीं अफर्मेटिव, फिर इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेस थे वहां पे था इम्पेरेटिव। आई विल रिमाइंड यू, इम्पेरेटिव का मतलब होता है मतलब इंग्लिश में था इफ यू रिमेंबर, इफ यू वांट टू ऑर्डर एनीवन और कमांड एनीवन और रिक्वेस्ट एनीवन तो इम्पेरेटिव होता है। अगर आपको किसी को बोलना है कि ही इज वेटिंग, लेकिन नहीं आपको बोलना है वेट, तो ये जो वेट वाला आपका जो टोन है वो इम्पेरेटिव है, ओके। लेकिन पहला बात है इम्पेरेटिव किसको हम यूज करते हैं, कौन से पे हम इम्पेरेटिव यूज कर सकते हैं। सो है तो, नूस, वूस, ठीक है। मैं कोई भी वर्ब उठा के ऐसे नहीं बोल सकती कि इम्पेरेटिव फॉर्म। इम्पेरेटिव फॉर्म सिर्फ 3 सब्जेक्ट प्रोनाउंस पे अप्लाई होता है, वो है तो, नो, वो, ओके। सो अभी तूस, नूस, वूस, ठीक है। सो आप इसमें अभी जो भी आप सारे पढ़ोगे सारे तूस, नूस, वूस इसके ऊपर ही है, ठीक है। तो आप 3 ही पढ़ोगे, उसके आपको 8, 9, 10 नहीं पढ़ना है, डोंट वरी, ओके। सो हम कैसे इंपेरेटिव करते हैं? फर्स्ट इज टेक कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट सब्जेक्ट। उन्होंने लिखा है टेक कॉन्जुगेटेड वर्ब एंड रिमूव सब्जेक्ट। अब आपको समझ में नहीं आएगा क्या, ठीक है। कॉन्जुगेशन का मीनिंग मैंने आपको बोला था इफ यू रिमेंबर, जैसे जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज होता है वर्ब हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम एट्रोवर्ब की ही बात करें, कैसे नूस सॉन्ग्स हो जाता है, इल्स सॉन्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज होता है हमारा वर्ब भी चेंज होता है। तो वो जो वर्ब चेंज होता रहता है उसको बोलता है कॉन्जुगेशन, और जो अलग अलग उसके वर्ब्स होते हैं उसको बोलता है कॉन्जुगेटेड वर्ब्स, ओके, कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ वर्ब्स। सो हमको अगर हम टू की बात करें तो उसको कौन सा वर्ब लगेगा वो लेना है, नूस की बात करें तो उसको कौन सा वर्ब लगेगा वो लेना है, वूस की बात करें तो उसको कौन सा वर्ब लगेगा वो लेना है। सो पर विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट टू, नो, वू, उसके जो फॉर्म्स है वो लेना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ टेक कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट सब्जेक्ट और रिमूव विद सब्जेक्ट सिंपली, ओके। टू अटेम्प्ट्स बन जाएगा अटेम्प्ट्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि इंपेरेटिव है तो exclamation mark is must, exclamation mark is must। टू अटेम्प्ट्स बन जाता है attempts exclamation, नूस अटेंडॉन्स बन जाता है attendons exclamation, वूस अटेंडेज बन जाता है attendees exclamation, ओके। लेकिन अगर मुझे उसको नेगेटिव बनाना है, ठीक है, अगर मुझे किसी को वेट की बजाय डोंट वेट बोलना है, ओके, तो मैं क्या करूंगी? फॉर नेगेटिव फॉर्म सिंपली यूज ने वर्ब पा। हमारा जो नॉर्मल होता है नेपा के बीच में जो वर्ब डाल देते हैं वही सेम करना है, लेकिन आपको एंड में ये डालना है और कॉन्जुगेटेड वर्ब यूज करना है। यहाँ पे भी अगर मैं टू को बोल रही हूँ तो इट्स गोना बी न अटेंड्स पा, अगर मैं नूस को बोल रही हूँ तो इट्स न अटेंडॉन्स पा, अगर वूस को बोल रही हूँ तो न अटेंडेस पा, ओके। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको ये जिसकी बात हो रही है ने और पा के बीच में डालना है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन डालना है, ओके। और अब आता है फॉर ER वर्ब टू फॉर्म, उसमें आपको S निकालना है।
क्योंकि ईआर फॉर्म में अगर आपको याद आएगा तो वो डोनेस था, डोनेट वर्ब हमने किया था ईआर में। तो हमारा ज का भी दोने था, उसके बाद इल एल ऑन का भी दोने था, लेकिन सिर्फ टू का डोनेस था। ओके, वैसे ही यहाँ पे भी रिगार्डेस है, ठीक है, तो उसका हमको एस निकालना है अगर हम इंपरेटिव बना रहे हैं तो, ठीक है। रिगार्डेस के बदले हमको रिगार्डे ही रखना है। ओके, ये थोड़ा एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। टू फॉर्म ऑफ ईआर इज बिना एस के। ओके, अभी कुछ इरेगुलर ट्रीटमेंट है इंपरेटिव्स के साथ, लाइक जो ट्रीटमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं हमारे वर्ब्स के साथ, वो 4 टाइप के वर्ब्स में ये ट्रीटमेंट नहीं फॉलो होता है। तो वो 4 वर्ब कौन से हैं जो हमारे इरेगुलर है या फिर हमारे एक्सेप्शंस है? वो है अवार, एत्र, आलेन एंड उवरीर, ठीक है। हमारा ये 4 वर्ब में एक अलग सा ट्रीटमेंट आएगा। कौन सा ट्रीटमेंट आएगा वो उन्होंने भी दिया है, लेकिन हम करेंगे इसके बाद। तो ये रहे हमारे इरेगुलर इंपरेटिव्स, ठीक है। नाउ दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जिसपे मैं आपको लॉजिक नहीं बोल सकती या फिर याद रखने का तरीका भी नहीं बोल सकती। ये वन ऑफ दोज वो टॉपिक्स है जो सच बोलो तो कंप्लीटली आपको खुद को ही पढ़ना है, ठीक है। मैंने टेबल बना दिया है, जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम आते हैं, मैंने यहाँ पे टू, नूस, वूस कर दिया, ठीक है। तो ये सारे टू है, ये सारे नूस है, ये सारे वूस है। अवार, एत्र, आलेन, उवरीर, ठीक है। अवार का टू फॉर्म इज आई, अवार का नूस फॉर्म इज आयोन्स एंड वूस फॉर्म इज आईएस, ठीक है। एक चीज यहाँ पे अच्छी है, नूस का ऑन्स 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 है और वूस का एज 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 है, ठीक है। टू का थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है। एत्र का टू फॉर्म इज सोइस, नोज इज सोयॉन्स, वोज इज सोयेस, ओके। आलेर का टू फॉर्म इज वा, नोज फॉर्म इज अलॉन्स, वो फॉर्म इज आलेस, ठीक है। उवरीर का टू फॉर्म इज उवरे, नोज फॉर्म इज उवरॉन्स, वूस फॉर्म इज उवरेस। यहाँ पे कुछ वर्ब का आप देखोगे, कुछ वर्ड्स का रेगुलर जो हमारा नॉर्मल वर्ब्स के साथ वही हुआ है, कुछ वर्ड्स का अलग ही आ गया वर्ब। यहाँ पे आई अलग ही आ गया, सॉइस अलग ही आ गया, जो हमारे नॉर्मल वर्ड्स में है ही नहीं, ठीक है। सो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर कोई भी एक वर्ड हो जो इरेगुलर है अमंग द होल पाइल, तो भी वो इरेगुलर्स में ही आता है, ठीक है। भले ये सब सेम हो, ठीक है, सिर्फ ये अलग हो, इसका सिर्फ ये अलग है, इसका सिर्फ वो अलग है, तो भी एक एक वर्ड अलग हो तो भी वो इसमें ही आता है, इसलिए वो यहाँ पे है इरेगुलर्स में, ओके। तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब आते हैं और वर्बेस इरेगुलर्स पे। Why do I always misspell this word? Verbs irregulars. Yes, okay. तो अब आते हैं और वर्बेस इरेगुलर्स पे। हमने पहले ही बहुत सारे वर्बेस इरेगुलर्स कर लिए हैं, थोड़े और, ओके। एंड यही तो है, ये चैप्टर में और भी है, इनको छोड़ के भी और वर्बेस इरेगुलर्स है, लेकिन अभी के लिए इतने हैं। इसके बीच में और टॉपिक आएगा, उसके बाद हम और वर्बेस इरेगुलर्स पे जाएंगे। एंड बिकॉज मैं ये वर्ड बराबर नहीं बोल रही हूँ, तो हालात ऐसे आ रहे हैं कि मुझे ये वर्ड बार बार बोलना पड़ रहा है। forget it. So यहाँ पे हम आते हैं, पहले मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउंस लिख दिया, प्रोंद्र, डीर, एक्रीर, वनीर। लेकिन जो प्रोंद्र का कॉन्जुगेशन है अप्लाइज टू कॉम्प्रोंद्र एंड अप्रोंद्र, एंड एक्रीर का जो है वो डक्रीर पे भी अप्लाई होता है। वनीर का जो है वो रेवनीर और दवनीर पे भी अप्लाई होता है। पहले मैं सबके मीनिंग्स बता देती हूँ, ठीक है। प्रोंद्र इज टू टेक, कॉम्प्रोंद्र मीन्स टू अंडरस्टैंड, comprehend, okay. Aprondra means to learn, dir means to speak or say, tell, okay. Ekrir means to write, dekrir means to describe, vanir means to come, revenir means to come back, devenir means to become, okay. So ये थे उनके मीनिंग्स। अब हम आते हैं पहले प्रोंद्र पे आते हैं। ज फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स, इल एल ऑन फ्रेंड, नोस प्रेनॉन्स, प्रेनॉन्स नहीं है, प्रेनॉन्स है, ओके। वूस प्रेनेस, लाइकवाइज, इल्स एल्स प्रेनेंट विथ डबल एन, ओके, डबल एन, ओके। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड, प्रेनॉन्स, प्रेनेस, प्रेनेंट। यही सेम कॉम्प्रोंद्र पे आता है। कॉम्प्रोंद्र का कैसे, वही जो ये है एग्जैक्टली द सेम, सिर्फ COM लगा देना है इसके पीछे। कॉम्प्रेंड्स, कॉम्प्रेंड्स, कॉम्प्रेंड, कॉम्प्रेनॉन्स, कॉम्प्रेनेस, comprehendent, exactly the same, okay. Aprondra, that means to learn, comprendre means to understand, okay. Aprondra, that means to learn, उसका भी सेम है, आपको बस AP लगा देना है इसका पूरा जो है उस पे, okay. Apprends, apprends, apprend, apprenons, apprenes, apprenant, okay, same, okay. अब आता है dear पे, which means to speak or say, tell, okay. Sh, these, to, these, il, on, deep, nos, dissonance, वूस
dictates, not this says. Okay, nous dissonance, vous dictates. फेजॉन्स का कैसे फेटेस था, मतलब फेजॉन्स फेटेस था, फेजेस नहीं था फेरे वर्ब में. ओके, फेरे वर्ब मींस टू डू और टू मेक, उसमें भी ऐसा ही था. फेटेस था, फेसेस नहीं था, मैंने उसको बार बार मार्क किया था. सेम थिंग अप्लाइज योर दिसॉन्स है, उसके बाद दिक्टेस है. ओके, एल्स एंस का डिसेंट है, इसका कुछ है नहीं जो इसके जैसा हो. ओके, अभी हम आते हैं एक्रीर पे, which means to write. Okay, show agrees, to agrees, il on agree, nos agrivons, vos agrives, else agrivent. Same for goes for decree, which means to describe. बस d लगा दो हर जगह, ठीक है, पूरे उसमें d लगा दो तो हो जाएगा decrease, decrease, decree, decrivons, decrives, decrevent. Simple. Okay, very simple. अब आता है वनीर वर्ब पे. ओके, वनीर तो कम, उसका एक्चुअली मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे को लगता है वनीर वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी कुछ वर्ब्स एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट है. ऑनेस्टली ये लॉट में से तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने जब मैं पढ़ाई करी थी ना, वनीर वर्ब बहुत आया है और प्रॉन्ड्रो वर्ब बहुत आया है, बीस भी आया है, एक्रीर भी आया है, लेकिन मैंने इन दोनों का इतना नहीं देखा है जितना मैंने इन दोनों का देखा है मेरे पढ़ाई में. तो आई विल टेल यू, वनीर वर्ब बहुत अच्छे से करना. मैं वनीर वर्ब में मिस्टेक्स करती थी, तो मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि वनीर वर्ब में मैं बहुत मिस्टेक कर रही थी, तो मुझे ध्यान रखना चाहिए. आई एम पासिंग इट ऑन टू यू. जो जब मैं पढ़ाती हूँ मुझे जैसे जैसे याद आता है मैं आपको टिप्स देते रहती हूँ. वैसे मेरा टिप है कि प्रॉन्ड्रो वर्ब तो अच्छे से हो ही जाएगा, वो तो इजी है, फिर भी ये जो डबल एन वगैरह जो देखना पड़ता है वो ठीक है. वनीर वर्ब अच्छे से करना, ठीक है. तो आते हैं वनीर वर्ब पे, व्हिच मींस टू कम. j viens, to viens, il on vient, nous venons, vie नहीं है, nous venons है, vous venez, ils else vinent, which has double n. Okay, viens, viens, vient, venons, venes, vienent. रवनीर के लिए सेम चीज है, आपको बस आर ई आर ई आर ई आर ई हर जगह लगा देना है. रेवियंस, रेवियंस, रेवियंट, रेविनॉन्स, रेविनेस, रेवाइनेंट, सॉरी रेवाइनेंट. ओके, रवनीर के लिए एक्जैक्टली सेम, ठीक है, टू बिकम. ओके, आपको बस डी ई डी ई डी ई डी ई लगा देना है हर जगह. डेवियंस, डेवियंस, डेवियंट, डेविनॉन्स, डेविनेस, डेवाइनेंट. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट सेट ऑफ वर्बेस इरेगुलर्स फॉर चैप्टर 6. दूसरा भी आएगा या. तो अब आते हैं इंट्रोगेटिव्स पे, और भी इंट्रोगेटिव्स है हमारे, ठीक है. इसमें तो सिर्फ दो ही है. फर्स्ट इज पर्क्वा, व्हिच मींस व्हाई. Every time you want to ask why, you use pourquoi. Okay. For example, यहाँ पे pourquoi was to a Strasbourg, which means why are you going to Strasbourg? तो इसका आंसर हो सकता है particle, which means because. Particle जो fires state à la université, which means because I have an internship to do at the university. Okay. यहाँ पे pourquoi why पूछा इसलिए उसने particle बोला, because whenever you ask why, the answer is because. Okay. And second is que, which means what. तो उसके example में you see que regardes to à la télé, which means what I watching in the television. तो वो बोलता है a film process, which means a French film. So yeah, it's very easy. Why पूछना है तो pourquoi आएगा, और what पूछोगे तो que आएगा. Let's move to the next topic. Coming back to one more set of verbs irregulars. Or trust me when I say this, I guess this is one of the easiest set of verbs irregulars. सच्ची ये बहुत easy है. पता है क्यों? क्योंकि देखो, एक तो पहले सब के सब आप देखोगे er verb है, ठीक है, er. इनका ट्रीटमेंट ER वर्ब जैसा ही है 90%, ठीक है, 90 ज्यादा पकड़ लो, ठीक है. सिर्फ कुछ चीजें हैं जो अलग है. सच्ची आप मॉन्जर में देखोगे सिर्फ ये अलग है, कमेंट सॉन्ग्स में सिर्फ ये अलग है, अशतेर में सिर्फ यहाँ पे ई के ऊपर ये जो लगता है वो साइन है, और प्रेफरे के ऊपर भी सब कुछ सेम है, सिर्फ ये 4 पे ऐसा साइन है और ये 2 पे ऐसा साइन है. जैसे जैसे हम एक एक वर्ड पे आएंगे वैसे वैसे मैं आपको एक एक चीज का बोलूंगी इसका लॉजिक क्या है, वरना आप देखोगे इट्स सेम. ज वाले फॉर्म वाले ई ही है, इलेलॉन के ई ही है, टू पे उन्होंने एस लगाया है, नोज पे ओएनएस है, वूज पे इजेड है, इल्सेंस पे एन है. इट्स एग्जैक्टली द सेम, बस कुछ छोटे मोटे करेक्शंस है, इनकी वजह से ये वर्ब्स इरेगुलर्स है, लेकिन दोज आर वेरी इजी एंड मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, डोंट वरी. ओके, so अभी हम आते हैं, where is my marker? I always lose my marker. Let's come to manger. Manger means to eat, my favorite verb because I love to eat. मेरे examples भी cooking, pizza, pasta यही सब के होते हैं. I love eating. Okay, who doesn't actually? Everyone's foodie. So manger means to eat, जिसका सेम कॉन्जुगेशन अप्लाई होगा नाशेर पे भी, वॉयशर, पार्टेशर, शेंजर, चार्जर. नेशर means to swim, वॉयशर means to travel, पार्टेशर means to share,
changer means to change, charger means to charge. Okay, then commencer which means to start or to begin. कुछ अगर हम start करते हैं तो commencer होता है, ठीक है. Remplacer means to replace, effacer means to erase, announcer means to announce. उन पे भी अप्लाई होता है commencer का ही conjugation. आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं इतने सारे कॉन्जुगेशन इन कितने सारे वर्ब्स पे अप्लाई हो रहा है, तो मैं आपको जितना स्पेसिफिकली एक एक वर्ब का बोल रही थी अभी तक उतना अच्छे से नहीं बोल पाऊंगी, इसीलिए आई एम रियली सॉरी. देन कम्स आशितर. आशितर मीन्स टू बाय. देन कम्स लेवेर. लेवेर मीन्स टू लिफ्ट. मैनेर मीन्स, ओह गॉड आई डोंट नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मैनेर. मैनेर का मीनिंग क्या होता है? पैसेर मीन्स टू वे, इतना मुझे याद है. मैनेर का मीनिंग, oh I'm a teacher, how can I forget? Oh god, I don't know. Okay, मैंने का जो भी मीनिंग होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगी. How can I forget? Okay fine guys, मेरे साथ भी होता है, मैं भी in the end एक ह्यूमन ही हूँ. मेरे को भी फ्रेंच बचपन से नहीं आता है, मैंने भी 11th-12th में ही फ्रेंच सीखा था. फाइन. मैंने मेरे को इसलिए याद नहीं है क्योंकि हमको मैंने वर्ब पढ़ाई में आया ही नहीं कभी. कितने सारे वर्ब्स है, ये आए ही नहीं कभी. नाशेर सच बोलूं तो आया ही नहीं इतना ज्यादा, बस थोड़ा बहुत कभी कभी आ जाता था. वोयाजर आता था, पार्टेजर नहीं आया, चेंजर नहीं आया, चार्जर नहीं आया, डेम्प्लेसर, एफएसर, अनाउंसर कुछ नहीं आया, पैसेट, लेवेर वो भी कभी नहीं आया. हाँ ये सारा है, मॉन्जर, कमेंसर, आशितर, प्रेफरेर, वोयाजर, ये सब आए हैं, ये सारे बहुत कम आए हैं. गुड न्यूज फॉर यू देन, क्योंकि इनका अगर कॉन्जुगेशन आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा. फाइन, आपको ये चार का अच्छे से याद होना चाहिए. आप खुद ही सोचो ना, अगर इनका इतना इंपॉर्टेंट होता तो वो ऐसे पढ़ाते क्या, वो उसका अलग से सेक्शन नहीं बनाते. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसे ही सिखा दिया, ये सिखा के बोल दिया कि आप इस पे भी यही अप्लाई कर दो, ठीक है. देन कम्स प्रेफरेर, मींस लाइक द वर्ड सेज प्रेफर. अभी मैं आपको सबसे पहले हम आते हैं मॉन्चर पे, माय फेवरेट वर्ब टू ईट. ओके, सब कुछ सेम है. je mange, tu manges, il elle mange, nous mangions, nous manges, il elle manges. अब आप देखो कि ये mangions है, ये mangions नहीं है या फिर कुछ है नहीं, ये eons जो है it makes it irregular. ओके, इसका जो ONS फॉर्म है it makes it irregular, ठीक है. manger, manges, manger, mangions, manges, mangen, ठीक है. अब आते हैं commencer पे, सेम थिंग. ओके, टू बिगिन पे commence, commence, रुको, je commence, tu commences, il elle commence, nous commençons with circumflex यहाँ पे, ठीक है. vos commences, ils elles commencent, ठीक है. सेम है, commence, commences, commence, commençons, commences, commencent. बस यहाँ पे आपको का circumflex डालना है यहाँ पे. That's it. इसके लिए ये irregular है. अभी आते हैं आशितर पे, which means to buy. आशितर, रुको, je achetais, tu achetais, elle on achetait, nous achetons, vous achetez, ils achètent. आशितर पे कुछ ग्राव या फिर कुछ भी साइन कुछ भी नहीं है, और आशेतॉन्स और आशेतेस पे भी नहीं है. सिर्फ ये चार जो है ना, ज, तू, इल, ऑन और इल्स पे, उस पे आपको बस साइन लगाना है, ठीक है. उस पे आप देख रहे हो, आपको आशेते पे है वो साइन, आशेतेस पे है, आशेते पे है, आशेतेंट पे है. तो आप देखोगे ये चार पे ये जो साइन लगा है, इसकी वजह से आशेतर वर्ब जो है हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है. ये जो छोटा छोटा साइन है मेक्स इट इरेगुलर. ओके, और अब आता है प्रेफरे. हमारी टीचर हमको बोलती थी कि ये जो साइन सबको याद रखना हो, तो जब ये साइन आता था ना, ई, ये पहले वाले ई पे ये साइन है, दूसरे वाले ई पे ये साइन है, तो शी यूज्ड टू से इट्स अ माउंटेन. एंड जब ये साइन होता था जो नॉर्मली प्रेफरेर पे है, तो इसको रिवर बोलती थी. दोनों ई पे ये साइन है तो रिवर है, और लास्ट ई पे ये साइन है तो इट्स माउंटेन. तो ज, तो, एल और इल्स एल्स पे आपको माउंटेन बनाना है, मूस वूस पे आपको रिवर बनाना है. प्रेफरेर पे आप देखोगे उस पे रिवर ही है, देखो इट्स रिवर ओनली. सिर्फ ये चार पे आपको माउंटेन बनाना है, इस पे अब रिवर ही है. तो क्योंकि दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल. ओके, सिर्फ ये ई का जो हो रहा है ना माउंटेन, उसकी वजह से प्रेफरेर इज इरेगुलर. ओके, सो ये नॉर्मली तो ये सारे बहुत सिमिलर है, सिर्फ ये छोटी मोटी चीजों की वजह से ये इरेगुलर बन जाता है, ठीक है. माउंटेन, 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 रिवर, रिवर, माउंटेन. प्रेफरे, je préfère, tu préfères, il elle préfère, nous préférons, vous préférez, ils elles préfèrent. ओके, तो या एज आई टोल्ड यू ये बहुत ही ज्यादा इजी है. रुको आपको मैं पढ़ा देती हूँ. आश्रित पे कैसे है, जो पहला वाला ई है उस पर हमने साइन लगाया है. जब आप लेवेर पढ़ोगे उसके भी पहले ई पे वो साइन आएगा, मैनर के पहले ई पे वो साइन आएगा, पैसर के पहले ई पे वो साइन आएगा, ठीक है. बाकी सब सेम है. अगर आप लेवेर, मैनर, पैसर का नोज निकालोगे तो उस पर कोई साइंस नहीं लगेगा, ठीक है. इट्स सेम. इसका आपको पहले तो ईआर ड्रॉप करना, ठीक है. लेवॉन्स, मेनॉन्स, पेजॉन्स, लेवेस, मैनेस, पैसेज सेम है, ठीक है.
आपको ये होगा आश्रित का, ठीक है। फिर भी कॉन्जुगेशन अगर मैं टेक्स्ट टाइप कर पाई तो मैं डालूंगी यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं कमेंट सेट पे, सेम चीज है, रेम्प्लेसर, एफएसआर, कनॉन्सर सब कुछ सेम है, बस आपका जो ई लास्ट में जो सी 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 है उस पर सर्कमफ्लेक्स डाल देना अगर आप लूज फॉर्म्स निकाल रहे हो तो, ठीक है। रेम्प्लेसर का कॉन्जुगेशन, फिर एफएसआर का कॉन्जुगेशन, अनॉन्सर का कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगर मैं डाल पाऊंगी तो अब मैं डाल दूंगी, है कुछ नहीं, बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। और अब आता है मॉन्शेर, उस पर भी आपको जो सेम है वही सेम है, लेकिन नेशियंस, वॉयजियंस, पार्टेजियंस, चार्जियंस, चेंजियंस यही है, ओके। तो मैं आपको एक एक वर्ड नहीं करवा रही हूँ क्योंकि एक एक वर्ड कराने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको जो इरेगुलर का साइन आपको ऐसे ऐसे कर दिया है, वही सेम चीज आपको वो वर्ड्स में अप्लाई करनी है, ठीक है। स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यू नो इट राइट। इसका सिर्फ EONS, इसका सर्कमफ्लेक्स, इसका माउंटेन, माउंटेन रिवर जो भी है वो, इस पे सिर्फ साइंस लगाने आपको ये चार्ट है। सो या दैट एंड्स आवर verbs irregular that ends our verbs irregulars for this chapter, ठीक है। अभी क्या देखते हैं, कोई और टॉपिक है कि भाई खत्म हो गया चैप्टर। टर्न्स आउट दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, दोज हु हैव एग्जाम्स। एंड कुछ लोग मेरे को कमेंट किया कि प्लीज बिलान आप क्यों नहीं करवा रहे हो, आप प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस क्यों नहीं करा रहे हो। बिकॉज मुझे आपको वो चीजें करानी है जो कहीं भी कवर्ड नहीं है, जो आप विपुल गाइड से नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको लेसन के ट्यूटोरियल्स कम जगहों पे मिलेंगे, विपुल पे नहीं मिले। आप सेल्फ स्टडी जो चीजें नहीं कर पाओगे, मैं वो चीजें पहले करवा रही हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस विपुल गाइड में है, फिर बिलान आपका विपुल गाइड में है, तो जो चीज आपको एक्सेसिबल है विपुल गाइड से वो मैं नहीं करवा रही हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं करवाऊंगी ही नहीं करवाऊंगी, पहले मैं 11th का पोर्शन कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं 12th का पोर्शन कंप्लीट कर दूँ, टाइम बचता है तो मुझे बिलान कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। उल्टा मजा आता है एक्सरसाइजेस करने में। आई रियली डोंट माइंड बिलान्स या फिर कोई भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, लेकिन पहले मुझे वो कवर करना है जो आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप खुद ही सॉल्व कर लोगे सारे एक्सरसाइजेस। सो या दिस इज व्हाई माय फर्स्ट फोकस इज ऑन चैप्टर्स, okay, yeah, same drill. Please like the video, please subscribe to the channel, please आपको कुछ भी bad, good, anything you have to say, please let me know in the comment section. Yeah, thank you so much, see you in the next video, bye.